Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again and we take the chapter of analysis of financial statement one step ahead. Now there have been three major parts of this chapter. The first one being vertical statement. उसके अंदर आपने कॉमन साइज पढ़ा, आपने कंपैरेटिव पढ़ा. अगर इक्का दुक्का, if there are a few questions remaining as and when this chapter goes ahead, those missed out questions अगर बच गए हैं वो मैं complete करा लूँगा. After that we have done ratio analysis, and right now what we are concentrating is cash flow statement. Now what is a cash flow statement? Not the entire story, but gist में. A cash flow statement is a statement up down which explains to the company cash, क्योंकि cash flow कहता है. ओके, तो जैसे एक नदी बहती है, flow, ओके, उसी तरह cash भी बहता है, आता है, जाता है. इन अ कंपनी वो तीन एक्टिविटीज़ में, तीन आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स व्हाट? ऑपरेशंस मीन्स व्हाट? शस्त्र क्रिया नहीं, वो नॉर्मल जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है ना, उसको कहते हैं, सर्जरी को. ओके, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है connected to business. So you would say सब बिजनेस में हो रहा है तो connected to business ही होगा. Not necessary, ज़रूरी नहीं है. Anything which is connected to business हर दिन होता है, क्योंकि वो connected to business है ना. But there are certain लेन देन जो बिजनेस में हर दिन नहीं होते. एग्जाम्पल, अगर आप डेटर को गुड्स बेचो, देन दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मैं तो हर दिन गुड्स बेचता हूँ. अगर मैं सप्लायर से गुड्स खरीदूँ तो वो भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मैं हर दिन खरीदता हूँ. अगर मैं रेंट पे करूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूँ, इंटरनेट बिल पे करूँ, ये तो आपको एवरी मंथ देना पड़ेगा, तो ये भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया. बट अगर आपने एक बड़ी सी मशीन खरीदी, दैट इज़ नॉट एवरी डे, डेफिनेटली नॉट इवन एवरी मंथ, सो दैट इज़ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अगर आप एक एसेट, फिक्स्ड एसेट, बड़ा एसेट या तो खरीदो, परचेस, या तो बेचो, दैट कम्स इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एंड अगर वो
एसेट खरीदने के लिए आप खुद का पैसा ना डालो, आप लोन से पैसा लो, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस, अरेंज फॉर द फाइनेंस, then that comes in financing activity. Now for the past 2 or 3 lectures, I have explained all the 3 activity in as much detail as possible. In today's question, the only thing different that we are doing is learning all the 3 activities together. This is last time's question, Sakshi Limited. इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, एवरीथिंग वाज देयर एंड कुछ इस तरह उसका सोल्यूशन था. टुडेज क्वेश्चन हैज अ वेरी सिमिलर सोल्यूशन, सेम बट नॉट ऑलमोस्ट द सेम बट थिंकिंग में सेम. ओके, सो वी विल बी डीलिंग विथ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. एट द वेरी एंड इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर सोल्यूशन. मैं वापस से रिपीट करता हूँ, द वेरी एंड इज द बिगिनिंग ऑफ योर सोल्यूशन, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर सोल्यूशन, स्टार्ट करते हो एंड से. थोड़ा अजीब लगता है व्हेन आई एम सेइंग दैट स्टार्ट करते हो एंड से, बिकॉज ये 20,000 क्या है, कैश एट द स्टार्ट. ये 30,000 क्या है, कैश एट द एंड. मतलब ऐसा सोचो कि मेरे पास एट द बिगिनिंग 20,000 था, 20,000, वो 30,000 बन गया, 30,000. अच्छी बात है, 10,000 बढ़ गया. इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट यू हैव टू एक्सप्लेन क्यों, कहां से, मतलब 10,000 आया ना, कहां से आया. सो दैट इज मीनिंग ऑफ कैश फ्लो. इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, उधर गया, जो भी है एक्सप्लेन करो. नाउ द सेम थिंग इन टुडेज क्वेश्चन. देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन, बिकॉज मुझको 2-3 करके कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. ओके, यू कैन लीजुअली आराम से वॉच वन क्वेश्चन, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द नेक्स्ट वन, देन देयर विल बी अनदर अ डिफरेंट लेक्चर फॉर इट. अबाउट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कोनल ट्रेडर्स. सो what we solve will be in the books of कोनल ट्रेडर्स. अगर आपको बरसात का आवाज़ आ रहा है, ओके, टिप टिप बरसा पानी, राइट नाउ तो मेरे घर के बाहर, मेरे विंडो के बाहर, ओके, टिप टिप तो नहीं बरस रहा बट काफ़ी जोर का है. सो यू मे इन द माइक गेट सम बैकग्राउंड स्कोर बाय मिस्टर रेन. ऊपर शेयर कैपिटल है, दैट इज अ रीजन फॉर फाइनेंस. क्रेडिटर है, दैट इज अ रीजन फॉर करंट लाइबिलिटी. प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस, बट जो लाइबिलिटी में आता है वो प्रॉफिट है. सो बिगिनिंग में प्रॉफिट था 10,000, एंड में प्रॉफिट हो गया 23,000, मतलब इंक्रीज. दैट इज व्हाट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन. यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस. फर्क क्यों आया, फर्क क्यों आया. ओके, कैश है, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट में आपके पास कितना कैश था, 30,000. एंड में कितना हो गया. नाउ व्हाई एम आई सेइंग स्टार्ट एंड, बिकॉज इफ यू सी द डेट, इट इज 31/3/17, 31/3/18. सो 17 इज द बिगिनिंग एंड 18 इज द एंड. देयरफॉर आई एम सेइंग ओपनिंग क्लोजिंग. 30,000 स्टार्ट में था, 47,000 एंड में. सो इट हैज़ इंक्रीज्ड, कैश बढ़ गया. कहाँ से, डाका डाला, चोरी किया, मतलब ऐसा आपने नहीं किया. दैट इज व्हाट पीपल विल आस्क, बताओ हमको. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बना के बताना है. नेक्स्ट, डेटर, दैट इज अ करंट एसेट. स्टॉक, दैट इज अ करंट एसेट. लैंड, दैट इज नॉट करंट एसेट, दैट इज अ फिक्स्ड एसेट. तो इफ लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर का, इसमें कोई तब्दीली, व्हाट डज दैट मीन, चेंज, बदलाव, उतार चढ़ाव, देन यू हैव टू डील इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. द फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया. सेकेंड, आपका जो सोल्यूशन है उसका जो शुरुआत है वो रेडी रखो. अच्छा, व्हाट डज शुरुआत मीन, देखो ऊपर लिख लो, इन द बुक्स ऑफ कोनल ट्रेडर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कायदा कानून, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके, पूरे भारत देश के लिए. 3, देयर इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके देयर आर मेनी कानून. कानून नंबर 3 में
कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बोला है। क्या बोला है? सबसे पहले आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे दूसरा लिखना है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे तीसरा लिखना है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो आप लोग भी लिख लो जल्दी जल्दी। देन नेट NET blank, fill in the blanks in cash and cash equivalent. For those of you who do not know, so what is cash and cash? कैश और कैश के रिश्तेदार ज़्यादा नहीं होते क्योंकि ये कोई बड़ा परिवार नहीं है। कैश बैंक उसका एक रिश्तेदार है और बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके लिए इतना काफ़ी है। कैश बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। Then you have to write at the start cash and cash equivalent and then you have to write at the end. Start का मतलब ओपनिंग बैलेंस कैश का, एंड का मतलब क्लोजिंग बैलेंस कैश का। किधर है ये ओपनिंग क्लोजिंग? क्वेश्चन में लेट्स सी आपका ये फॉर्मेट एंड दैट शॉर्टकट अबाउ रेडी होना चाहिए। आफ्टर इट इज रेडी then you can continue. Right now in the question my concentration is कैश किधर है, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर उसके ऊपर है, मेन हीरो वही है। सबसे पहला जो अपना कैमरा पैन होगा ना, पैन वो किस पे होगा? कैश पे, बिकॉज वो हीरो है। अच्छा कैश ऊपर है, फर्स्ट आइटम एसेट साइड। कितना था स्टार्ट में? 30,000, एंड में कितना था? 47,000। ओके स्टार्ट में 30,000 था, देखो मैं लिख देता हूं किधर, इधर 30,000, एंड में कितना था? 47,000। तब्दीली मतलब बदलाव। इफ द कैश इन योर पॉकेट वॉज 30,000 एंड एट द एंड इट बिकेम 47,000, इट इज गुड, पैसा आया। कितना पैसा आया? 17,000। वो पैसा आया कि गया? आया, क्योंकि 30 47 हो गया मतलब पैसा आया होगा, उसको कहते हैं इंक्रीज, एंड दैट इज व्हाट यू राइट देयर। 17,000 इंक्रीज। कैन इट बी डिक्रीज? व्हाई नॉट? देयर इज वन क्वेश्चन लेटर ऑन जो हम लोग करेंगे कि कम हो गया पैसा तो डिक्रीज होगा, तो फिर ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा। नॉट टुडे, आज तो ये 17,000 बड़ा है। आई रिपीट, मैंने पिछले भी बोला है, अभी पुलिस खड़ा है, CID खड़ा है, EOD खड़ा है, इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट डंडा लेकर, और वो आपको पूछ रहा है एक्सप्लेन करो 17,000। हम बोलेगा नो प्रॉब्लम सर, कोई चोरी का पैसा नहीं है, हम एक्सप्लेन करेगा। कैसे एक्सप्लेन करेगा? सबसे पहले सर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। वो जो ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, उसका फर्स्ट लाइन में नेट प्रॉफिट आना चाहिए, तो वो किधर है? देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर। एट द बिगिनिंग द प्रॉफिट वाज 10,000 एंड एट द एंड इट हैज बिकम 23,000, तो इंक्रीज हो गया ना। द डिफरेंस, बीच का फर्क, प्रॉफिट एंड लॉस के बीच का फर्क डिटरमाइंस द प्रॉफिट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल राइट इज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऊपर डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस 13,000, 13,000, 10 से 23,000। ओके, इसके बाद गो इन ऑर्डर। अभी तक थोड़ा उबड़ गाबड़ था, बट द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज टू फाइंड आउट कैश एंड द डिफरेंस इन कैश। द सेकेंड थिंग दैट यू डू इज टू राइट द नेट प्रॉफिट, एंड द थर्ड थिंग इज टू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम बिगिनिंग से। अच्छा, पहला क्या है? शेयर कैपिटल। क्या है उसके बारे में? पहले 2 लाख था, फिर 2.5 लाख बन गया। 1 मिनट, मतलब पहले शेयर होल्डर्स ने 2 लाख दिया था, फिर उन्होंने मेरे को 2.5 लाख दिया, मतलब उन्होंने मुझे 50,000 ज्यादा दिया ड्यूरिंग द ईयर, 1 साल के दौरान, क्योंकि ये 1 साल का प्रॉब्लम है। ओके, क्यों दिया उन्होंने दया धर्म नहीं किया, मैंने शेयर्स बेचे, अपना मैंने टुकड़ा बेचा उनको। शेयर्स, दैट इज व्हाट कंपनी डज ना, कंपनी इज मेड अप ऑफ शेयर्स, छोटा छोटा टुकड़ा बेचा, पब्लिक ने पैसा दिया, शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो 50,000 जो पैसा आया विल कम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिहाइंड मी इशू ऑफ शेयर कैपिटल। व्हाट इज दिस इशू? इशू का मतलब सेल ऑफ शेयर्स। ओके,
Now because you're in accounts, if you are doing biology, then you will use the language of biology. If you are doing physics, chemistry, you will use the subject language. This subject, which is accountancy, says issue of share capital, बेचा shares. कितना पैसा आया? 50,000. ओके, चलो फर्स्ट आइटम डन. 2 लाख बन गया 2.5 लाख, 50,000 पैसा आया. नेक्स्ट, शेयर कैपिटल डन. क्रेडिटर्स का क्या चक्कर है? वो करंट लाइबिलिटी है. क्या हो गया? 70 से 45 कम हो गया. वेरी इंपॉर्टेंट, कम हो गया. वेयर डू यू राइट डिक्रीज इन क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स तो इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज वी डील विद देम रेगुलरली. सो प्लीज लुक अबाउ नेट प्रॉफिट के नीचे डिक्रीज इन क्रेडिटर. नाउ द थिंकिंग क्या, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन क्रेडिटर? होता क्या है? पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, उसके लिए शॉर्टकट कैसे? वेल, जो हाईलाइट किया है वो देखो. करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो माइनस, एवरीबॉडी माइनस. व्हाट इज माइनस? पैसे गए. आई रिपीट, माइनस का मतलब क्या है? पैसे गए. तो आपको नेगेटिव में लिखना है. तो प्लीज नोट 25,000 ब्रैकेट नेगेटिव, ब्रैकेट मीनिंग नेगेटिव. ओके, सो क्रेडिटर इज डन. नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो तो किया ना. दैट इज हाउ वी फाउंड आउट द प्रॉफिट फॉर द ईयर. कैश, वो भी तो किया. दैट इज हाउ वी फाउंड आउट द इंक्रीज इन कैश. वो पहले कंसिडर कर लिया, वो पहले हमने पढ़ लिया, सीख लिया. नेक्स्ट, डेटर. अच्छा, डेटर स्टार्ट में 1,20,000 था, फिर 1,15,000 हो गया, कम हो गया. डेटर कम हो गया. हाँ, तो लिखा मैंने डिक्रीज इन डेटर. बट माई माइंड इज थिंकिंग इज इट प्लस और माइनस? सम स्टूडेंट्स ऐसा डिक्रीज बोल रहे हो तो माइनस करो. नहीं नहीं नहीं, वो डेटर में डिक्रीज है. उसका जो कैश पे असर होता है, कैश पे असर, वो हमको यहां पे लिखना है. एंड इफ यू सी अबाउट, करंट एसेट अगर डिक्रीज हुआ तो प्लस होता है, प्लस. कैश पे असर प्लस होता है. सो 5,000 प्लस. नेक्स्ट, स्टॉक, दुकान का सामान, माल. 80,000 था, फिर 90,000, तो 10,000 बढ़ गया. ओके, इंक्रीज. 10,000 बढ़ गया, इंक्रीज. सो आई रोट इंक्रीज इन स्टॉक. एंड इफ यू नोटिस अबाउट, CA increases, then the current asset, sorry, the cash is minus, and that is what I have done already, minus 10,000. So be थोड़ा ध्यान में, थोड़ा कदम फूक फूक कर, हौले हौले, when you are dealing with CACL, because it is a little confusing. So sometimes you say increase plus, sometimes you say increase minus, क्योंकि current asset का increase और current liability का increase में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का. तो you can't by heart, you have to look at the shortcut above. Then last line of the question, land. क्या हो गया लैंड को? पहले 50,000, बाद में 66,000 हो गया, बढ़ गया. मतलब तुमने किसी का लैंड हथियाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, नो गैर कानूनी काम, इलीगल, नो नो नो, लीगल. मैंने खरीदा, 16,000 दिया, रखो, लैंड मेरे को दो. विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. लैंड को खरीदना, बेचना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. परचेस ऑफ लैंड, क्यों माइनस? क्योंकि पैसे दिए इसके लिए, minus 16,000. Now after you have read the entire question, you should have 3 answers. मतलब 13 minus 25. ओके, आपको minus 12,000 आएगा, प्लस 5, फिर आपको कुछ minus 7,000 आएगा, minus 10, आई रिपीट, minus 17,000. ऐसे चुटकी बजा के नहीं होता, it takes little time. 13 minus 25 is subtract minus 12, plus 5 is minus 7,000 and minus 10. It is ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूसली, प्लस माइनस. तो तुम्हारा थोड़ा मैथ्स की गाड़ी थोड़ा और फास्ट चलना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, investing is 16,000 negative and financing is 50,000 positive. You have to tell your mind कि 17,000 negative
16,000 नेगेटिव में अगर मैं 50,000 ऐड करूँ पॉजिटिव, आई विल गेट 17,000 पॉजिटिव. I repeat, 3 numbers, minus 17 plus minus 16 plus 50,000, positive 50, gives you 17,000. Not just you, it gives me, it gives anybody who solve this problem. तो ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर, फाइनेंसिंग का आंसर ऐड करो. यू शुड एंड यू विल गेट एक ढेला पैसा, रुपया, ज़्यादा कम नहीं होगा. It will match with net increase or decrease, whatever is it, in cash and cash equivalent. So I repeat, like last time, we have done one full type of problem today involving all the 3 activities. Last time साक्षी का था, आज कोनल का है. नेक्स्ट टाइम भी एक प्रॉब्लम है जहाँ पे हम सारे एक्टिविटीज़ एक साथ में करेंगे, 1-2 चीज़ें हम नई उसके अंदर सीख लेंगे. बट आई होप ये एक्सप्लेनेशन और लास्ट टाइम का भी आपको समझ में आ गया. अगर आपको समझा है तो क्या करना है, लाइक कर देना है. इफ़ यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब, डू दैट. इफ़ यू कैन प्रेस द आइकन, प्लीज़ डू दैट. इफ़ यू कैन शेयर आवर वीडियोस, लेक्चर वीडियोस विथ शहर का कोना कोना, चप्पा चप्पा, मीन्स विथ एवरीबडी दैट इज़ ऑन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट. प्लीज़ वो कर लेना. हम लोग जल्दी मिलेंगे इस वाले चैप्टर के कंटिन्यूएशन के स्टार्ट में. तो टिल द टाइम वी मीट अगेन, अ वंडरफुल डे अहेड. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सीनियर्स एंड जूनियर्स. अपने बड़ों का, छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखना. जल्दी मिलेंगे. टिल दैट टाइम, गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. बाय फॉर नाउ.